Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to Social Studies class. In our today's Social Studies class, we will study a new chapter of Civics. Chapter number 21, Prejudice and Discrimination. What is prejudice and what is discrimination? We will study this, but before studying this, let us recall about chapter 20. In chapter 20 we studied about diversity. Diversity क्या है? Diversity is difference. Okay, different things are there in the society. So the difference, the variety which we observe in India. So diversity क्या है? भिन्नता है. ठीक है, हम सब अलग हैं, एक जैसे नहीं है. हमारी कास्ट अलग होगी, हमारा फूड हैबिट्स अलग होगा, या तो हमारा अपीयरेंस अलग होगा. ओके, some might be looking very tall, some might be short, some might be fair, some might be dark, some might be looking thin, some might be thick. So diversity means differences. It means variety. So there are diverse people, and how diversity is important. Diversity is very important part of society. We all need diversity. Imagine if you are told to wear the same clothes, same color, same design clothes every day. Will you like it? No. If you are given the same food every day, will you like it? No. We need something interesting, and diversity is interesting part of the society. But with diversity comes discrimination. Yes, diversity may sometimes lead to discrimination. Now, who is discriminating? We all are discriminating. So let's start this chapter, Prejudice and Discrimination. You have to link chapter diversity with this. We know that there are many types of people, many different peoples. So there is diversity, but along with diversity, what we are doing, instead of enjoying this diversity, instead of celebrating this diversity, we are doing division. We are dividing. Okay. If that person is not like me, then divide him. We are doing that. ठीक है, हम डिवाइड करते हैं, हम उनकी डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं करते. We don't accept and respect the difference. From there, division starts. We make our own opinions. हम अपने judgment बनाने लगते हैं. That is called prejudice. That results in prejudice. And again, prejudice and stereotypes. What is stereotypes? Yes, you might have heard that boys are not allowed to cry. Okay, boys should not cry. What is that? That is stereotype. यानी एक stereotype एक फिक्स आइडिया है, एक फिक्स ग्रुप के बारे में, बॉयज के बारे में एक फिक्स आइडिया है. और ये stereotypes कौन क्रिएट करते हैं? हम लोग क्रिएट करते हैं. We have to question this stereotype. Why boys can't cry? They also are emotional. They are having feelings. They also might feel hurt, and they also might cry. So these are stereotypes. There are many stereotypes which we are going to read in the chapter. And this all diversity and prejudice results in discrimination. हम कहीं ना कहीं भेदभाव करने लगते हैं. Okay, we discriminate. So this results in discrimination and inequality. Along with that comes inequality. So we are going to study about this. You will think discrimination, prejudice and inequality are very similar. Okay, they are very similar topics. So we have to study them in deep. Okay, in depth we have to know these topics. So we know that there are many divisions. Okay, suppose I will tell you one story. That suppose in your neighborhood a new family has come to stay. Okay, and the children of that family are coming to play with you, but you are not playing with them. You are treating them badly just because they are of different caste. So that you are doing division, you are doing based on caste, you are dividing them. You are not involving them to your play. Okay, you are not including them. So you are dividing them and you are doing discrimination based on caste. So this discrimination results in the hurting, in hurt. Okay, they feel hurt, they feel inferior or they feel indifferent. Okay, they don't feel equal like you. So this results in inequality. So everything is linked with each other, and we will study this in detail. Now what we can do, ये सारी चीजें हैं.
boys like guns, girls like Barbies, then why can't a boy play with Barbie? Okay, they can surely play. Why can't a girl play with gun or can play with cars? She also can play. So these are all stereotypes that we have to break, right? So we have to question these stereotypes and we have to think logically and we have to break these stereotypes. Now, how our constitution is fighting against prejudice and discrimination. What is prejudice? Prejudice is prejudgment. It is the irrational behavior or opinion about someone. Okay, that is irrational behavior or opinion about someone. So what constitution does to fight against prejudice and against discrimination? Now there are some inequalities that are not based on prejudice and stereotypes. Which are there? They are inequality between the lower class and the higher class, between the poor and the rich. तो ये हम पूरा पढ़ने वाले हैं आगे. अभी आपको ये समझना है डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट पीपल, ओके, डिफरेंट थिंग्स इन दी सोसाइटी दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड दैट वी हैव टू celebrate. But we are not celebrating, we are dividing. Okay, we are having our thoughts and opinions that are very irrational. ठीक है, तो हम हम लोग प्रेजुडाइज करते हैं, यानी हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं या हम ऐसे ओपिनियंस बना लेते हैं that are very irrational, that are not true. There are many stereotypes also. Stereotypes क्या है? जब हम एक तरीके के ग्रुप के लिए एक तरीके से सोचने लगते हैं. Like for boys, if we are thinking that they have to play with cars only, they can't play with Barbies. If we are thinking that girls के ग्रुप को Barbie से खेलना है, उनको cars नहीं खेलनी है, तो we are creating stereotypes. What is discrimination? We are doing difference. We are treating differently. Okay. अगर कोई गर्ल को कार से खेलना है तो we are not accepting that fact. Okay. हम किसी की यूनिकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे and resulting into discrimination and inequality. Again, we are going to study what we can do. We can start questioning. We can start improving our thoughts. We can question them. Okay. And how Constitution fights against these kinds of prejudice and discrimination. Okay. So let's start. And we will read this from your book. Chapter 21, Prejudice and Discrimination. Let's do warm up. Telling a girl that she can't play football with boys just because she is a girl and should play with dolls is an act of gender discrimination. Can you point out two such acts of discrimination happening around you that should not happen? Yes, you have to think about two such acts of discrimination. Here in your book you are given the conversation between girl and two boys. Girl is saying, "Hey, I also want to play football. Can I?" One boy is answering, "You can't. You are a girl. Go play with your dolls." ठीक है, एक लड़का जवाब देता है, नहीं, तुम नहीं खेल सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम्हें घर जाके बारबी से, डॉल से खेलना है, यहाँ पर हमारे साथ फुटबॉल नहीं खेल सकती. तो दूसरा आंसर करता है, नो ऑफ कोर्स शी कैन. दूसरा वाला बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऑफ कोर्स वो हमारे साथ खेल सकती है. यस, शी कैन प्ले विथ अस. शी इज जस्ट लाइक यू एंड जस्ट लाइक मी. वो मेरी और तेरी जैसी ही है, इसलिए वो खेल सकती है. एंड इवन वी कैन प्ले विथ हर डॉल्स. ओके, द सेकेंड वन इज वेरी क्लियर. ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट or he does not have certain stereotypes. The second boy says, she can play with us. She is just like you and me, and even we can play with her dolls. We are also like her. So there is no fixed set of idea that who can do which activity, right? So both boys can do and girls can do all activities. Okay. Now let's read the chapter. The first topic is the concept of prejudice. The word prejudice means unfair and unreasonable behavior or opinion about someone or something. When you behave unfairly with someone, okay, on the basis of your prejudgment, then that is
प्रेजुडाइज। ओके, प्रेजुडाइज क्या है? प्रेजुडाइज है अनफेयर या अनरीजनेबल बिहेवियर that is formed irrationally. Okay, you don't have any logic or you don't have any fact behind it, you just behave unfairly and unreasonably. Okay, so the unreasonable behavior or opinion that is formed irrationally without any evidence, without any proof or information is prejudice. Prejudice hampers our ability to think in a logical manner and makes us biased and unjust. Means it makes us partial. Okay, we do partiality with someone. We treat someone unfairly because of prejudice, because of our wrong opinion, because of our prejudgment. It is a negative feeling based on prejudgment. यानी आप किसी को समझते नहीं हो, आप किसी को पहचानते नहीं हो, उसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, उसके बारे में आपको एविडेंस आपके पास नहीं है, फिर भी आपने उसको जज किया, प्री जज किया, और अब आप उस प्री जजमेंट के बेसिस के ऊपर उसके साथ अनफेयर बिहेव कर रहे हो. दैट इज प्रेजुडाइज. इन द प्रीवियस चैप्टर diversity, we have learnt that it is necessary to understand and respect the difference of other people. हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी में कि बहुत अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी हैबिट्स होती है, उनकी लाइफस्टाइल होती है, उनका इकोनॉमिक क्लास हो सकता है. सो देर इज़ डाइवर्सिटी एंड देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस in each and every individual, but we have to respect this difference, we have to celebrate this difference. But what we are doing, we are dividing other people from us. Okay, we are dividing and we are forming prejudice. Okay, but prejudices make the discriminatory. Okay, हम difference सोचते हैं, हम different उनको मानते हैं और हम उनको अपने आप से divide कर देते हैं. Thus prejudices are harmful to harmonious existence of different kind of people in a society. तो जहाँ जहाँ prejudice है, ठीक है, वहाँ वहाँ डाइवर्सिटी वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते. ओके, डाइवर्सिटी है सब में, पर अगर prejudice भी है तो हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं और फिर हम एक साथ मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज स्टीरियोटाइप. व्हाट इज स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप इज अ फिक्स्ड सेट ऑफ आइडियाज दैट मैनी पीपल एक्सेप्ट और बिलीव विदाउट क्वेश्चनिंग इट लॉजिकली. मीन्स स्टीरियोटाइप्स ऐसे रिजिड आइडियाज हैं जो हमने सुने हैं और हमने उनको मान लिया है, हमने उस पर कभी सोचा नहीं है, कभी विचार नहीं किया है. ठीक है, वो स्टीरियोटाइप्स है जो हमने एक्सेप्ट कर ली है. ओके, काफ़ी स्टीरियोटाइप्स हैं हमारी सोसाइटी में. एग्जाम्पल, गर्ल्स हैव टू प्ले विथ बार्बी डॉल एंड बॉयज़ कैन प्ले आउटसाइड, बॉयज़ कैन प्ले विथ गन्स, कार्स, और बॉयज़ कैन प्ले स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल. ओके, सो देर आर मेनी स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप क्या है? एक फिक्स सेट ऑफ आइडियाज़ है, एक रूल है जो हमने एक बाउंड्री बना दी है और वो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं विदाउट थिंकिंग लॉजिकली. यानी हम एक ऐसा मानते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है तो उसको यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है. एक पर्टिकुलर ग्रुप है तो उनको यही सारी चीज़ें करनी है. ठीक है, तो दैट इज स्टीरियोटाइप. Stereotype do not allow us to identify, understand and respect the difference and in turn give rise to further prejudice. ठीक है, stereotypes हमारे जो है, ठीक है, वो हमको कोई यूनिकनेस को आइडेंटिफाई नहीं करने देते, वो एक्सेप्ट नहीं करने देते डिफरेंस. ओके, सो stereotypes do not allow us to identify, understand and respect the difference and इन टर्न गिव्स राइज टू फर्दर प्रेजुडाइज, जिसके वजह से हम वापस अनफेयर ओपिनियन बनाकर अनफेयर ट्रीटमेंट देते हैं किसी को. स्टीरियोटाइप्स गिव्स फर्दर प्रेजुडाइसेस. ओके, तो
हमें कोई भी प्रेजुडाइज या कोई भी स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए. वी नीड टू थिंक लॉजिकली. Instances of prejudice against people. Here there are two case studies through which we can see how prejudice is done against people. Case study 1. A new family comes to a locality where people have fair complexion. Okay, the children of new family, Anita and Avishek, are not accepted by other children in the locality because they have dark complexion. The other children do not want to play or make friends with the two new kids. So this is unfair behavior. This unfair behavior towards Anita and Avishek is a prejudice which is not based on any logical thinking. तो यहाँ पर एक न्यू फैमिली आती है नेबरहुड में और नेबरहुड के सारे बच्चे साथ मिलकर खेलते हैं. पर जो इस न्यू फैमिली में अनीता और अभिषेक है, उनका कॉम्प्लेक्शन यानी उनका स्किन टोन, उनका स्किन कलर वो डार्क है, जबकि दूसरी फैमिलीज के बच्चों का स्किन कलर फेयर है. ठीक है, दूसरे बच्चे गोरे हैं और ये बच्चे दिखने में डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले हैं. तो जो दूसरे बच्चे हैं वो इनके साथ नहीं खेल रहे हैं. दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व अनीता एंड अभिषेक इन देयर ग्रुप. They don't want to become their friends or they don't want to play with them just because of their dark complexion. So this is unfair treatment. This is unfair behavior towards Anita and Avishek. And this unfair behavior is based on prejudice, which is not based on any logical thinking. Now case study 2. Vikas Gupta took his two daughters to local cricket coaching center for admission. विकास गुप्ता है, उसकी 2 डॉटर्स है और वो उनको क्रिकेट कोचिंग क्लास में ले जाते हैं. Their neighbors laughed at them. उनके अड़ोस पड़ोस वाले उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उन पे हंसते हैं. And the boys of the coaching center, जो बॉयज़ वहाँ पर है, ठीक है, जो बॉयज़ प्लेयर्स हैं, द बॉय प्लेयर्स, दे ऑल्सो टीज दी गर्ल्स, वो भी उनको चिढ़ाते हैं और उनकी मस्ती करते हैं. बट द क्रिकेट कोच गेव इक्वल इम्पोर्टेंस टू दी गर्ल्स. बट जो क्रिकेट कोच है वो गर्ल्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको भी अच्छे से सिखाते हैं. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, कुछ साल वहाँ पर वो ट्रेनिंग लेते हैं. उसके बाद ये जो 2 गर्ल्स हैं, ये दोनों ही गर्ल्स क्वालिफाई होती है स्टेट टीम के लिए. These 2 girls get qualified to represent the state team. In this case, the prejudice is the unjustified behavior of the boys and the neighbors towards the girls coming from the mindset that cricket is a boys game. Okay, तो यहाँ पर विकास गुप्ता है, वो अपनी डॉटर्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए ले जाते हैं. वहाँ उनको एडमिशन मिलता है, पर उनके नेबरहुड यानी कि विकास गुप्ता के अड़ोस पड़ोस वाले, कॉलोनी वाले उन पे हंसते हैं. और वहाँ पर जो बॉय प्लेयर्स होते हैं यानी कि उनके साथ जो बॉयज़ खेल रहे होते हैं वो भी इनको बहुत चिढ़ाते हैं और इनकी मस्ती करते हैं. बट कुछ सालों के बाद ये दोनों बहुत अच्छे से सीख जाती है और ये स्टेट टीम के लिए क्वालिफाई हो जाती है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेजुडाइज है वो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है. प्रेजुडाइज है वो अनजस्टिफाइड बिहेवियर है बॉयज़ और नेबर्स का. ठीक है, जिनका माइंडसेट ये है, वो बॉयज़ और नेबर्स का माइंडसेट ये है कि क्रिकेट है वो सिर्फ बॉयज़ का ही गेम है. ओके, सिर्फ बॉयज़ ही क्रिकेट में अच्छा कर सकते हैं. बट दैट प्रेजुडाइज इज़ रॉन्ग. वी ऑल नो दैट वी ऑल also have Indian women cricket team. Okay, India has Indian women cricket team and it has very efficient, very qualified, very good women cricket players, right? So ये just prejudice है, right? आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे common stereotypes. Common stereotypes. There are quite a number of common stereotypes. कॉमन स्टीरियोटाइप्स है दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, जो आज भी सोसाइटी में सबके माइंड में है. ठीक है, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स होता है अ सेट ऑफ आइडियाज़ अबाउट अ ग्रुप. ओके,
अ सेट ऑफ आइडियाज दैट यू हैव अबाउट अ ग्रुप. फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब किसी ग्रुप के बारे में एक तरह से सोचते हो, एक तरह से आप मानते हो कि उनको होना चाहिए, तो वो स्टीरियोटाइप है. ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि बॉयज़, तो आपने बॉयज़ ग्रुप के लिए ये रूल बनाया है, आपने ये आइडिया आपके माइंड में फिक्स है कि सारे बॉयज़ है वो क्रिकेट में अच्छे हैं. ठीक है, सारे बॉयज़ ही क्रिकेट में अच्छे हो सकते हैं, तो ये एक आपका स्टीरियोटाइप है. ओके, तो काफ़ी ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं. दे हैव डेवलप्ड ओवर टाइम बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी लर्न टू आइडेंटिफाई देम. स्टीरियोटाइप से काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से ये चलते आ रहे हैं और डेवलप होते रहे हैं, और हमें इन स्टीरियोटाइप्स को आइडेंटिफाई करना है और इनको तोड़ना है. हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है, राइट. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन स्टीरियोटिपिकल आइडियाज. People who can speak English are superior. This is a stereotype. Okay, मानते हैं कि इंग्लिश जो बोल सकते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, वो ज़्यादा हम बोल सकते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, बट दिस इज़ अ स्टीरियोटाइप. ओके, इंग्लिश इज़ just like other languages. English is a language that is a medium to communicate. It is not that one who knows English is better, one who knows English is intelligent compared to other person who does not know English. ठीक है, जिनको भी नॉलेज है वो सारे लोग इंटेलिजेंट है. ठीक है, आप नॉलेज है वो कोई भी लैंग्वेज में गेन कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो. सो दिस इज अ स्टीरियोटाइप दैट people speaking English are superior. Now second stereotype is women are poor drivers. Okay, ऐसा भी stereotype है कि women है वो अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती. Okay, they are poor drivers and this is also a stereotype. Boys and men should not cry. Okay, ये stereotype है कि boys और men को रोना नहीं चाहिए. ठीक है, जब भी हम अगर कोई लड़का रोता है तो हम उसको बोलते हैं लड़की है क्या, क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है. तो हमने एक सेट ऑफ आइडिया बना लिया है कि लड़के को रोना नहीं है, लड़कियां रो सकती है. ठीक है, बॉयज़ भी रो सकते हैं, बॉयज़ भी फील करते हैं. ओके, दे आर ऑल्सो फीलिंग इमोशनल, समटाइम्स दे माइट फील लो और हर्ट. ओके, सो दे कैन ऑल्सो क्राई इफ दे आर फीलिंग हर्ट, इफ दे आर हैविंग पेन. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टीरियोटाइप. Now other, women should know how to cook and men should earn. This is also a stereotype कि women है तो उनका काम है कुकिंग और men का काम है अर्निंग. ओके, women को कुकिंग करना है और men को पैसे कमाने हैं. तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि औरत है तो उन औरतों को, वुमेन्स को घर पे रह के कुकिंग करना है, बच्चों का ध्यान रखना है और घर का ध्यान रखना है, घर के काम करने हैं. और अगर मैन है तो मैन को बाहर जाके कमा के आना है. तो एक स्टीरियोटाइप्स है. ओके, ये स्टीरियोटाइप्स हम देख सकते हैं कि ये स्टीरियोटाइप्स है हमें की एंड का में दिखा है. की एंड का मूवी आपने अगर देखी हो तो उसमें जो एक्टर्स हैं उन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ा है. द एक्टर्स ऑफ दिस मूवी हैव ब्रोकन दिस स्टीरियोटाइप. Okay, in this movie woman works and man cooks. Okay, so this stereotype is proved wrong. Now armed and military forces are meant only for men. ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि आर्मी में सिर्फ men जा सकते हैं. men ही सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग है. they are very strong and they can fight very well. so this is stereotype. तो मिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस में वुमन भी जा सकती है, राइट. यहाँ पर आपको एक इमेज भी दिया है. वुमन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एट परेड. वुमन भी जा सकती है और इंडिया में ये स्टीरियोटाइप से वो धीरे धीरे टूट रहे हैं. ओके, ये प्रेजुडाइज है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. सो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो वुमन, इंडियन वुमन आर्मी की जो परेड कर रहे हैं. ओके, काफ़ी दूसरे स्टीरियोटाइप्स भी है जो कि है फेयर पीपल आर ऑलवेज ब्यूटीफुल. ओके, गोरे लोग ही खूबसूरत है. ठीक है, ये भी एक स्टीरियोटाइप है. फिर
पिंक कलर इज़ फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज़ फॉर बॉयज़, ये भी स्टीरियोटाइप है। ठीक है, पिंक कलर है वो गर्ल्स का फेवरेट कलर होना चाहिए और ब्लू है वो बॉयज़ का, तो ये भी एक स्टीरियोटाइप्स है। आपने देखा होगा कि गर्ल्स के लिए काफ़ी लोग पिंक कलर के ड्रेस, पिंक कलर की चीज़ें खरीदते हैं और बॉयज़ के लिए ब्लू, तो दिस इज़ ऑल्सो अ स्टीरियोटाइप। वी कांट एसोसिएट अ जेंडर विथ कलर or we can't associate a gender with any toy. Okay, now girls should play with dolls and teddy bears and boys with cars, toy guns etc. ये भी एक स्टीरियोटाइप्स है। ओके, कि अगर गर्ल है तो हमें उनको डॉल्स देनी है गिफ्ट में, उनको बारबीज देनी है, टेडी बेयर्स देने हैं। गर्ल्स है वो उनके साथ खेलेगी और बॉयज़ है वो कार, टॉय गन्स उनके साथ खेलेंगे, तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है। बॉय भी टेडी बेयर के साथ खेल सकता है और गर्ल भी गन्स के साथ खेल सकती है। These stereotypes have a negative impact on us. ये स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडाइज का हमारे माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और हम इसी वजह से हार्मनी में नहीं रह पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने में हम क्या कर सकते हैं। हाउ टू क्वेश्चन स्टीरियोटाइप्स एंड prejudice. We can question stereotypes and prejudice. The most effective way of questioning such stereotype is to think rationally before forming opinions. तो किसी को जज करने से पहले या कोई ओपिनियन बनाने से पहले या कोई बात एक्सेप्ट करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना है। वी हैव टू थिंक रैशनली, हम लोग को उसके रीजंस, उसका लॉजिक ढूंढना है और फिर कोई ओपिनियन बनाना है। ठीक है, कोई भी कुछ बोले तो वो स्टीरियोटाइप हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस ऑफ अदर्स। ठीक है, अगर किसी लड़की को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, अगर वो क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहती है, तो हमें उस यूनिकनेस को, उसकी डिफरेंस को हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, वो बाकी लड़कियों से अलग है, शी इज़ डिफरेंट, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। ओके, ज़रूरी नहीं है हर एक लड़की है उससे जो है वो कुकिंग में ही इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो हमें ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी यूनिकनेस है, उनके अपने इंटरेस्ट है, उनकी अपनी सोच है, तो वी नीड टू एक्सेप्ट इट। ओके, बॉयज़ है वो भी कुकिंग कर सकते हैं, गर्ल्स है वो भी बॉक्सिंग कर सकती है, फुटबॉल खेल सकती है। ओके, ईच पर्सन हैज़ देयर यूनिक एंड वेराइड क्वालिटीज़। डिफरेंसेस शुड नॉट बी क्रिएटेड बिटवीन पीपल सिंपली बिकॉज अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल आर डिफरेंट। ठीक है, तो हम लोग को हर एक की यूनिकनेस और उनकी क्वालिटीज़ को समझना चाहिए और डिफरेंसेस को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिफरेंसेस है, ठीक है, उसमें अगर हम उसके बेसिस पे अगर हम अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, किसी के साथ अनफेयर ट्रीट करते हैं किसी को, तो ये हमारा डिफरेंस बढ़ाएगा और हम हार्मनी में नहीं रह पाएंगे। ओके, जस्ट बिकॉज कोई पर्सन डिफरेंट है, उनकी आइडियाज़ डिफरेंट है, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर माइंड सेट, वी शुड नॉट create a difference and we should not we should not treat unfairly. Okay, concept of discrimination means the unequal treatment of different people and things on the basis of religion, gender, nationality, caste, economic status, complexion etc. Discrimination is an act of prejudice. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन यानी जब आप किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करो, किसी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करो। ओके, तो ये जो ट्रीटमेंट होती है वो कौन से रीज़न से हो सकती है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ रिलीजन, ओके, इट कैन बी बिकॉज ऑफ जेंडर, नेशनैलिटी, कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा। अगर कोई पर्सन है वो हमारे रिलीजन का नहीं है तो हम उसके साथ डिफरेंस करने लगते हैं, या अगर कोई
फीमेल्स है तो वो मेल्स के साथ डिफरेंस करें, मेल्स है वो फीमेल्स के साथ कर सकते हैं। या नेशनलिटी, अगर हम इंडियन है तो अगर कोई और फॉरेनर है, यानी या तो कोई और पर्सन है जो जिसका नेटिव इंडिया नहीं है, तो उसके साथ अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें, कास्ट के बेसिस पे हम डिफरेंस करें कि आप अलग कास्ट के हो, हमारे कास्ट में ये अच्छा है, आपके कास्ट में ये ख़राब है, तो ये सारा जो हम करते हैं, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, कोई पुअर है या रिच है उसके बेसिस पे उनको अनइक्वल ट्रीट करना, ठीक है। सपोज एक शॉप ओनर है और शॉप ओनर के पास 2 कस्टमर्स आते हैं और पहला कस्टमर है वो इकोनॉमिकली वो पुअर है, ठीक है, और सेकंड कस्टमर है वो बहुत रिच है, ठीक है। तो जो शॉपकीपर है अगर पुअर वाले की डिमांड सुनने से पहले या पुअर वाले को अच्छे से अटेंशन नहीं देकर वो रिच वाले को अटेंशन देने लगे, पुअर वाले को निग्लेक्ट करे या पुअर वाले को अच्छे से उससे बात ना करे, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, सो डिस्क्रिमिनेशन इज एन एक्ट ऑफ प्रेजुडाइज। डिस्क्रिमिनेशन कब आता है? जब हमने ओपिनियंस बना लिए हो, हमने जब नेगेटिव ओपिनियंस बना लिए हो तब डिस्क्रिमिनेशन हम करने लगते हैं। When a person does not get equal respect or benefit as others, ठीक है, जब एक पर्सन को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट या बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, 2 पर्सन्स है या 2 पर्सन्स है, एक को रिस्पेक्ट मिल रही है, एक को बेनिफिट्स मिल रहे हैं और दूसरे को नहीं मिल रहे हैं, ही और शी फील्स निग्लेक्टेड, ही और शी फील्स इग्नोर्ड, ही और शी फील्स inferior and he looks down which affects their performance and mental health। ठीक है, तो जिसके साथ ये अनइक्वालिटी हो रही है, जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। Thus discrimination is detrimental, it has detrimental effect on an individual। detrimental means damaging, okay, it has damaging effect on an individual। Inequality and discrimination, when 2 people are treated differently and one is given more advantage than the other without any reason, कोई रीज़न, कोई कारण के बिना, ओके, कोई कारण के अलावा अगर किसी एक को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तो ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, अगर कोई अपने कास्ट का है और हम उसको ज़्यादा फेवर करते हैं जस्ट बिकॉज वो अपने कास्ट का है, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग इनइक्वालिटी विथ अदर। ओके, सो द अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इज डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अगर मुझे कोई फेवरेबल लग रहा है, कोई उसमें क्वालिटी नहीं है, ओके, कोई यूनिकनेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, पर अगर मुझे कोई अच्छा लग रहा है और मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करूं तो वो इनइक्वालिटी है। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग तरीके के भेदभाव जो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में होते हैं। सो फर्स्ट इज रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination can be on the basis of religion. People of one religion may treat others who follow other religion unfairly। यानी अगर कोई एक रिलीजन है, फॉर एग्जाम्पल वी से हिंदू, ओके, हिंदूज ट्रीट अदर रिलीजन, इफ दे आर ट्रीटिंग अदर रिलीजन unfairly, then it is religion discrimination। This type of discrimination is called religious discrimination, यानी ऐसा discrimination that is because of religion, difference in religion। Now caste discrimination in India, since early times society has been divided into rigid hierarchical groups based on the work that people used to do। तो पहले से ही बहुत ही रिजिड कास्ट ग्रुप्स डिवाइड किए हुए हैं और ये 4 कैटेगरीज है, मेन 4 कैटेगरीज है। दे आर ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. ओके, द शूद्रास और द हरिजन्स आर द लोएस्ट रंग ऑफ सोशल लैडर. तो ये जो शूद्रास है यानी कि हरिजन्स है वो सबसे लास्ट लोएस्ट है. ठीक है, दे आर लोएस्ट इन दिस सोसाइटी. एंड द अपर कास्ट है, दे रिगार्ड देम एज अनटचेबल्स. ओके, तो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करते थे. जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उनको लोअर कास्ट के लोगों को अनटचेबल मानते थे, यानी वो लोग छुआछूत करते थे. ठीक है, वो लोग उनके साथ इनइक्वली पेश आते थे. इनइक्वली यानी वो लोग उनको अनटचेबल्स मानते थे, वो उनको मनहूस मानते थे. वो मानते थे कि ये ऐसे हैं कि जो हमें छुएंगे तो बुरा होगा. ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि वो लोग उन्हें छुए भी. ओके, दे यूज्ड टू ट्रीट देम वेरी अनफेयरली. ओके, बहुत क्रूअल होते थे इनके साथ. इनको बस छोटे काम, साफ सफाई के काम इनको दिए जाते थे, जैसे ड्रेनेज सिस्टम साफ करना या रोड्स साफ करने, ऐसे सारे काम उनको दिए जाते थे और इनको अनटचेबल यानी कि अछूत माना जाता था. द अपर कास्ट एंजॉयड मोर प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. ये लोग अपर कास्ट को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती थी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, और लोअर कास्ट को कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी. वो दे वर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ एंड ह्यूमन डिग्निटी. तो दे वर नॉट गिवन इवन द बेसिक फैसिलिटीज़. ज़्यादा फैसिलिटी के बारे में तो छोड़ो, मिनिमम जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो भी उनको नहीं मिलती थी, और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाता था. उनके साथ इनइक्वली ट्रीट करते थे, यानी उनको बहुत हर्ट होता था. राइट, दे यूज्ड टू फील हर्ट, दे यूज्ड टू फील देमसेल्व्स एज इन्फीरियर. Such unjust and abominable discrimination based on caste in which a person is born. ठीक है, हम कौन सी कास्ट में बॉर्न होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है. कोई कहाँ बर्थ लेता है कौन सी कास्ट में उनके हाथ में नहीं है. तो ये कास्ट के बेसिस पे जो डिफ्रेंसिएशन होता है उससे हम कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि जो कास्ट है शूद्रास, ठीक है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दैट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंड इट इज स्टिल प्रिविलेंट इन इंडिया. कहीं ना कहीं अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. Although the Constitution of India has given equal rights to men and women. ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो संविधान है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग को इक्वल राइट्स दिए हैं, मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स दिए हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. इन रियलिटी हमको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है. गर्ल्स ऑफन आर नॉट सेंट टू स्कूल्स. गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, उनके पीछे ज़्यादा, उनकी एजुकेशन के पीछे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करते हैं. ओके, सो गर्ल्स ऑफन आर नॉट सेंट टू स्कूल और आस्क्ड टू ड्रॉप आउट टू हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क. ये लोग ऐसा मानते हैं कि गर्ल्स है तो उनको घर का ही काम करना है फ्यूचर में. ओके, उनको घर ही संभालना है, उनको शादी करनी है, उनको घर संभालना है, तो वो पढ़ के क्या करेंगी. ठीक है, तो ये एक माइंडसेट है जो बन चुका है, और ये इसी वजह से वो लोग गर्ल्स को इतना एजुकेट नहीं करते हैं. ठीक है, उनको घर के कामों में लगा दिया जाता है. पेरेंट्स गिव बेटर अपॉर्चुनिटी टू बॉयज़. ठीक है, पेरेंट्स है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बॉयज़ को देते हैं. अगर उनका बॉय चाइल्ड है और गर्ल चाइल्ड है तो बॉय चाइल्ड को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, उनको ज़्यादा फ्रीडम देंगे. At the workplace also, in the workplace too, women often earn less wages. Women को कम पे किया जाता है. Okay, women often earn less wages compared to men. इसका मतलब ये नहीं है कि वुमन कम काम करती है या वो कम क्वालिफाइड है. ओके, काम अगर बरोबर भी करती है, सेम वर्क एलोकेशन होना, तो भी वुमन को कम पे किया जाता है. दिस इज ऑल्सो अ डिस्क्रिमिनेशन विथ वुमन. Okay, so women are paid less
they earn less wages compared to men for the same work, for the same task. Okay, these are some of the instances, these are the some of examples of gender discrimination in our society. ये कुछ examples है, ये कुछ cases है जो gender discrimination हमको दिखाते हैं. Our mindset has to be changed. अगर हम अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, तो ही हम मैन और वुमेन दोनों को इक्वली ट्रीट कर पाएंगे. इफ़ वी चेंज आवर माइंडसेट वी कैन ट्रीट वुमेन एज इक्वल ह्यूमन बीइंग एंड ब्रिंग बैलेंस. हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी ऑल आर इक्वल. मैन और वुमेन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. जब हम मानेंगे कि दोनों इक्वल है, तभी हम एक बैलेंस बना पाएंगे सोसाइटी में. ओके, so we all have to break these stereotypes. We all have to reduce this discrimination around us, right? Combating discrimination. Discrimination violates basic human rights. ठीक है, discrimination harms basic human rights. It ruins human rights. तो हम सब humans हैं और हमारे अधिकार है, पर हमारे अधिकार नहीं हमको मिल पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन. इट इज़ हार्मफुल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी. डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत हार्मफुल है. ठीक है, शांति नहीं रहती है हमारे सोसाइटी में, शांति, पीस और एकता नहीं रहती है. लॉज आर इम्पोज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ पीपल. तो काफ़ी ऐसे लॉज है, काफ़ी ऐसे रूल्स है अकॉर्डिंग टू विच देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. ओके, सो दिस लॉज प्रिवेंट discrimination, they prevent unjust treatment. However, spreading awareness is the most important and effective way to tackle discrimination. हम जितना awareness create करेंगे, हम जितना लोगों को समझाएंगे, खुद समझेंगे, ठीक है, जितनी awareness हम create करेंगे उतना ही हम discrimination को कम कर सकते हैं. ठीक है, and most people most often do not even realize that their thoughts and actions can be discriminatory. ओके, लोग काफ़ी बार ये रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि वो किसी के साथ ख़राब बिहेव कर रहे हैं, वो किसी के साथ अनफेयर बिहेव कर रहे हैं. ओके, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. तो वी नीड टू मेक देम रियलाइज, वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फाइट्स अगेंस्ट such discriminations and prejudice. Okay, the Constitution of India was planned and drafted by B.R. Ambedkar. ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी प्लानिंग और उसको किसने प्रिपेयर किया है? उसको प्रिपेयर किया है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, B.R. आम्बेडकर. तो उन्होंने अकेले ने ही नहीं बनाया है, एक असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उन्होंने, और जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर. तो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो इफ़ेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950. ओके, तो बिफोर दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर मेनी डिस्क्रिमिनेशंस, ओके, इन दिस सोसाइटी. Later on in this constitution there are certain provisions, there are certain laws that check upon this discrimination and prejudice. Okay, the constitution is a body of supreme laws of the country. Constitution है, उसमें laws लिखे हुए हैं और वो laws है वो हर एक सिटीज़न को, इवन मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट को, सबको फॉलो करने हैं वो लॉज. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम बॉडी है, वही सुप्रीम बॉडी है जो कि कंट्री में जिसके सारे लॉज चलते हैं. द प्रीएम्बल और इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. प्रीएम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है. तो जो प्रीएम्बल है या इंट्रोडक्शन है, जो इंडेक्स है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा लिस्ट दिया है, मतलब रूल्स का एक हम बोल सकते हैं एक शॉर्टकट हम बोल सकते हैं. ओके, द प्रीएम्बल और इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
states that India is a secular republic and sovereign डेमोक्रेसी. वो बोलता है इंडिया है वो सेक्युलर रिपब्लिक है, यानी यहाँ पर कोई भी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है. यहाँ पर हर एक रिलीजन के लोग इक्वल हैं. यहाँ पर हर एक रिलीजन इक्वल है. यहाँ पर हर कोई इंडिपेंडेंट है. हर किसी को इक्वल राइट और इक्वल फ्रीडम है. हर किसी के लिए लॉ है वो सेम है और हर कोई लॉ के सामने सेम है. ठीक है, कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं है. Every citizen of this country is equal and has equal right. It has equal right to vote. Okay, हर एक सिटीजन जो एडल्ट सिटीजन है उन सबको वोटिंग राइट है. According to Constitution, any discrimination based on caste, creed और religion is a punishable offense. कोई भी जो डिफरेंस है अगर आप कोई कास्ट, रिलीजन या क्रीड के बेसिस पे करते हो तो वो एक क्राइम है, एक ऑफेंस है जिसकी सजा भी मिलती है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब फादर ऑफ द नेशन. ओके, तो B.R. अम्बेडकर और गांधी जी ये दोनों बहुत ही अच्छे से उन्होंने काम किया है. उन दोनों ने फाउंडेशन रखा है. दे वर पायोनियर्स इन रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट कास्ट प्रेजुडाइज. तो जो कास्ट प्रेजुडाइज है उनके अगेंस्ट में इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई. इट वॉज बिकॉज ऑफ देम, इट वॉज बिकॉज ऑफ आम्बेडकर, B.R. आम्बेडकर एंड गांधी जी दैट special provisions were added, were included in Indian Constitution for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. तो जो भी पछात वर्ग के लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए भी एक प्रोविज़न ऐड किया था ताकि वो इक्वल हो सके, वो भी ऊपर आ सके और फिर इक्वालिटी वाला नेशन बन सके. ओके, India being a land of diversity means India is a land of diversity. Here many different people live, many different people following different religion, following different caste, speaking different language, wearing different clothes, eating different kind of food. Okay, live in India. तो काफ़ी अलग अलग वैरायटी के लोग यहाँ पर रहते हैं. तो जहाँ पर इतने अलग अलग लोग रहते हैं वहाँ पर ऐसे प्रोविजंस की ज़रूरत है. Okay, being a land of diversity, such provisions in constitution are necessary. It is a necessity. In fact, these have been successful in some ways to fight this discrimination. तो ऐसे provisions हैं जिसके वजह से situation है वो balanced है, situation है वो controlled है. Okay, और ये provisions है वो काफ़ी successful रहे हैं in fighting discrimination. Okay, but proper education and awareness need to be imparted to people so that they can be fought more effectively. Hope you found this chapter very relatable. Now what you have to do, you are an important part of this society. You are the upcoming future of this society. So you have to always question this kind of prejudice and stereotypes. You don't have to blindly accept everything, right? You have to question them and you have to develop a rational thinking. You have to develop a society where everyone is equal, everyone can do everything, okay? Where uniqueness is respected. So we have to develop that kind of society. Here we end this chapter. You have to read the chapter and try to solve the exercise. Okay children, bye.